Now come to the treatment. The treatment is, first of all, airway should be clean as it is a respiratory depression. Maybe the person coming is having severe respiratory depression और इसलिए एयरवे को क्लीन करते हैं ताकि उसको इंट्यूबेट करे या उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसकी क्लियर करे. Then we can give analeptics, that is amphetamine sulfates 20 milligram IV and cardiazole 5 milligram. ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं, एनालेप्टिक्स हैं, ये उसको फास्ट करेंगे. Stomach wash if not in coma. Remember when these things are taken in tablet form, तो stomach wash is always very important क्योंकि जितनी भी tablets हैं वो अगर ली गई है तो ये tablets सारी की सारी इकट्ठी digest नहीं होती. Maybe के lumps of tablets should be recovered from the stomach. So stomach wash is very important, especially if he or she is not in coma. Then we can give purgatives. Purgatives जो है जो अगर वो थोड़े से absorb हैं या थोड़े से उसमें गट में आगे चले गए हैं तो purgatives can push that और जो absorption time है that will be reduced. Then forced alkaline diuresis with mannitol 100 से 200 milliliter of the 25% solution, that can be very important. Hemodialysis if it is absorbed और kidney failure में जा रहा है तो hemodialysis is very important. Then heparinize करना, mini heparinization or elastic stocking, especially DVT deep vein thrombosis में और thromboembolism में. Whenever such patient are bedridden for a longer time, there is always, और किसी भी कंडीशन में, इसके अलावा भी किसी भी कंडीशन में अगर prolonged bedridden है बंदा तो वो उसमें क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो. तो उसमें या तो उसको देते हैं हेपरिन देते हैं लो डोज में ताकि उसकी जो है वो क्लॉटिंग ना हो, प्लस उसको जो है इलास्टिक स्टॉकिंग करते हैं जो कि एक टाइट किस्म की लेगिंग्स होती है वो देते हैं ताकि जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर ए लॉन्ग बेडरिडन पेशेंट्स. Then postmortem appearance. The postmortem appearance जो है वो actually not that much characteristics, but because of the death is due to respiratory failure, तो जो respiratory failure के asphyxia के जो sign symptoms हैं वो predominant होंगे. इसमें most important जो है वो asphyxia, that is cyanosis बहुत ज़्यादा होगा. Then we have postmortem staining जो है that is prominent होगी. Then skin blisters. Remember, barbiturate blisters are skin blisters. This is a short question, this is a theory question, this is a MCQ questions. और ये barbiturate blisters because of barbiturate poisoning for a long bedridden patient, there are blister formation occurs और जो कि cutaneous edema में थे. On the pressure sites due to cutaneous edema, there is cutaneous edema pressure side में स्पेशली जो साइड नीचे हो. इसीलिए इन तरह के पेशेंट्स में अक्सर जो है हम फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज करते हैं पोजीशन को, हर 2 घंटे बाद पोजीशन को चेंज करते हैं. समटाइम्स नीचे कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, रिंग रखते हैं कि जो स्किन ब्लिस्टर्स या बार्बिटरेट ब्लिस्टर्स ना हो, जिससे बेड सोर्स बनते हैं जिससे बाद में. Then internally there is ingested tablets parts can be found. अगर टैबलेट ज्यादा ली गई हैं, कुछ डाइजेस्ट हो गए हैं, लेकिन अगर नहीं हुए कुछ तो इंटरनली कुछ टैबलेट्स जो है उसके पार्ट्स मिल सकते हैं. Then gastric mucosa may be eroded. जी बिल्कुल इरोजन हो सकती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की. Lungs are congested, edematous petechial hemorrhages on the pleura. These are the signs of asphyxia because of respiratory failure. These can be also seen on the postmortem appearance. Organs are congested and may be black with whole venous system is congested with dark deoxygenated blood. That's why ये जो person होगा उसकी जो sinuses होगी वो थोड़ी सी deep होगी, dark color की होगी. So organs are congested and may be black with whole venous system is congested with dark deoxygenated blood. Now the medical legal aspects. The medical legal aspect is that it is mostly suicidal. ठीक है, rarely used as a homicidal due to a larger dose and prolonged unconsciousness. ठीक है, सुइसाइडल है क्योंकि बंदा ऑप्शनल लेता है. होमिसाइडल रेयरली है क्योंकि लार्जर डोज चाहिए और प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस चाहिए. until and unless the very ultra short acting way is used.
एंड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ड्यू टू ओवरडोज, ठीक है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ड्यू टू ओवरडोज हो सकती है। इसमें एक वर्ड यूज होता है ऑटोमेटिज्म, बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म। ये एक ऐसा फिनोमिना है, पहले मैं इस पे आपको बता दूं कि एक बंदा जो है वो मेडिसिन लेता है, बारबिचुरेट्स लेता है, उसको पेन भी है, वो समझता है कि शायद इससे पेन भी रिलीव होता है, लेकिन इससे पेन रिलीव नहीं होता, क्योंकि इससे सिर्फ सेडेशन होती है। तो वो समझता है कि इससे पेन रिलीव नहीं होगा, तो वो दोबारा लेता है। इस तरह वो जो बार बार रिपीट करता है तो होता क्या है कि वो ऑटो में चला जाता है। इस तरह इसको कहते हैं बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म, जिससे पॉइजनिंग डेवलप होती है। वो पेन के लिए ले रहा है लेकिन पेन कम नहीं हो रहा, लेकिन पॉइजनिंग डेवलप हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिज्म, बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म। एंड मिक्स थेरेपी विद अदर्स में एडिटिव है, सिनर्जिस्टिक है। अगर इसको हम उसके साथ ले जाए, जैसे पहले मैंने बताया था अल्कोहल के साथ या कार्बामेज़ेपिन के साथ, तो फिर ये ज्यादा डेंजरस हो जाती है। एंड आईवी डायफेंटोन इज यूज्ड, ये स्पेशली इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज कॉल्ड ट्रुथ सीरम। यानी ये लोगों को आईवी लगा के उसके बाद उसको एक सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाके उससे पूछते हैं। ये ज्यादातर इंटेरोगेटर यूज करते हैं, जितने भी जो एजेंसीज हैं स्पाइन में ये यूज होता है आईवी थायपेंटोन, ताकि उससे निकलवाए। अक्सर जो है ये इंटेरोगेशन में लोगों को लगा के, ताकि उसको सबकॉन्शियस में ले जाए, उसके बाद जो उससे जो भी सवाल किया जाए वो उसको सही बताता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, जिसको दूसरे लफ्ज में टायोपेंथॉल भी कहते हैं। नाउ दिस वाज दी अबाउट बारबिचुरेट्स